جی بابا، میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی میری ذات کی تذلیل کرے یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا دکھ شاید بابا نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاباش بیٹا، اور ویسے بھی تمہاری پھپھو بھی کہہ رہی ہیں۔ جی ماما نے بتایا تھا بابا، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی ہو، بس آپ کی اور ماما کی عزت کرتا ہوں۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ میرے ہم سفر کا انتخاب آپ کریں، کیونکہ آپ نے مجھ سے زیادہ عمر گزاری ہے اور میں جانتی ہوں میرے بابا بہت خاص کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیں گے۔ جو آپ کا انتخاب ہوگا وہ بہت خاص ہوگا میرے لیے بابا۔ شاباش میرا بیٹا، جیتی رہو، تمہارے بابا کو تم پر مان ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہو دن؟ شاہ زین کا میسج آ گیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بات نہیں کرنا چاہتی؟ آپ کو 1000 بار کہا ہے مجھے میسج نہ کرے، ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ اچھا ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بس ویسے ہی اداس تھا میں تو آپ کو میسج کر دیا۔ دیکھیں شاہ زین صاحب، آپ اداس تھے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اللہ آپ کی تکلیفات کو دور فرمائے۔ مجھے میسج نہ کرے، شکریہ۔ اچھا، آئی ایم سوری، بس اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے ثنا۔ میں نے اس لڑکی سے اب جلد ہی بدلہ لینا ہے۔ یہ ہوتی کون ہے مجھے شاہ زین کو انکار کرنے والی؟ اس کا غرور میں نے ہاتھ میں ملانا ہے بس۔ دیکھو شاہ زین، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا تم مجھ سے بات کرو۔ میں ہوں نا، چھوڑو دفع کرو۔ وہ ویسے بھی ہے کون؟ بدلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیار تو میں بھی تم سے ہی کرتا ہوں، مگر آج تک کسی نے مجھے اگنور نہیں کیا۔ اس کی سزا تو اس کو ملے گی ہی، ضرور ملے گی، بس تم دیکھتی جاؤ۔ پاپا یہ پھپھو کی کال آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کال کر رہی ہوں، آپ نے اٹھائی نہیں، اور میرا موبائل چارجنگ پر لگا ہوا ہے تبھی۔ لاؤ دو میں بات کروں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ کب سے آپ کو کال کر رہی تھی میں۔ نہیں، بس وہ موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ خیر بھائی جان، وہ آپ لوگوں نے سب نے شام کو ہمارے گھر آنا ہے۔ کیوں خیریت؟ ہاں، وہ عارف کی آج ہم منگنی کر رہے ہیں۔ کیا؟ پر کس سے؟ جی وہ یہاں پر ہی ہے، کوئی مجھے بہت پسند ہے۔ وہ تو میں نے، لیکن آپ نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں اس کے بارے میں، یوں اچانک سے ہی۔ ہاں تو اب بتا رہی ہوں نا۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے آنا ہے اور عدن بیٹی کو بھی لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کیا ہوا پاپا، آپ اداس لگ رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ عدن نے بابا کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ آج عارف کی منگنی ہے تو سب کو بلایا ہے۔ مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا، نہ پوچھا۔ میں نے تو سوچا تھا ہم بھائی بہن مل جائیں گے، لیکن ایک بار بھی نہیں بتایا۔ اوہو پاپا، آپ بھی نہ، کچھ نہیں ہوتا بلکہ اچھی بات ہے، اور آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ لیکن بیٹا مجھے تمہاری فکر ہے، میں بھی بیمار رہتا ہوں، تمہاری ماما بھی۔ میں چاہتا ہوں ہماری زندگی میں ہی تمہارا کہیں رشتہ ہو جائے۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جن کی بے لوث محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمہ وقت اولاد کے لیے خوشیاں مانگنے والی، ان کا بس چلے تو اپنی جان کے بدلے بھی خدا سے اپنی اولاد کی خوشیاں خرید لے۔ پاپا پلیز، آپ بھی نہ، عدن منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، پریشان نہ ہوا کرے، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ اللہ تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنے بندوں سے۔ جو بھی ہوگا اس میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ اب آپ بھی پریشان نہ ہو پاپا۔ پر بیٹا پلیز نہ پاپا، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، زیادہ خراب ہو جائے گی نا پاپا۔ اور پلیز آپ نے پھپھو سے کچھ بھی نہیں کہنا، ان کا بیٹا ہے، ان کی مرضی۔ پر بیٹا میں نہیں جاؤں گا۔ ارے پاپا، آپ بھی نہ کبھی کبھی بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں۔ عدن پاپا کو ہنسانا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں نا پاپا، آپ ان کے بھائی ہیں، آپ نہیں جائیں گے تو سارا خاندان باتیں کرے گا، کیا فائدہ ان سب کا یا ناراضگی کا؟ پورا خاندان جانتا تھا کہ تمہارا رشتہ بچپن ہی سے پھپھو کے بیٹے سے طے ہے، اور تو اور عارف بھی تم سے پیار کرتا ہے، یہ بات سارا خاندان جانتا ہے۔ اچھا نہیں کیا میری بہن نے۔ اوہ پاپا پلیز نہ، کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں، سچ میں، اور میں تو جا رہی ہوں تیار ہونے، آپ بھی اٹھیں اور تیاری کریں۔ اوہو بھائی جان، بڑا افسوس ہوا، بس کیا کریں؟ بس ہیں، کوئی مر گیا ہے کیا؟ عدن نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں، کوئی نہیں مرا، پر افسوس ہو رہا ہے بیٹا۔ ہے کس چیز کا افسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ یہی کہ عارف منگنی کر رہا ہے۔
तो इसमें अफसोस की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। अदन जानती थी सब खानदान वाले क्या कहना चाहते हैं। लोगों को तो मौका चाहिए होता है दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का। फिर भी सबसे ज्यादा अदन खुश थी या वो दिखा रही थी मामा पापा को कि वो परेशान ना हो। लेकिन रिश्तेदारों की बातों ने अदन को बहुत परेशान कर दिया था। उसका नन्हा सा दिल बड़े बुरे अंदाज से धड़क रहा था। इस नाजुक तितली के तो अभी रंग ही गहरे नहीं हो पाए थे कि खुद गर्ज जमाना उन्हें रोंदने के दर पे हो गया था। उसको खुद से ज्यादा पापा की फिक्र थी कि उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। जब भी कोई ऐसी बात करता अदन के वालिद से अदन बात ही चेंज कर देती। अदन ने पहली बार अपने वालिद को रोता हुआ देखा था। अदन के वालिद अपने वालिदैन के सामने रो रहे थे कि मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया। अगर नहीं करना चाहती थी तो ना करती, कम से कम मुझे बता देती। इसने मुझे अपना समझा ही नहीं कभी। इंसान बड़े बड़े दुखों और मुश्किलात का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेता है जब उसका हाथ थामने वाले उसके अपने उसके साथ हों। लेकिन जब आपको महसूस हो कि भरी दुनिया में वो तन्हा खड़ा है, उसकी हिम्मत बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, तो छोटी छोटी आंधियां भी आपको हिलाकर रख देती हैं। अदन के बाबा के साथ भी यही हुआ था। अपने इतने मजबूत बाबा को हारता और रोता देखकर अदन का वजूद ज़ल्ज़लों की जद में आ गया था। वो अपने बाबा को तसल्ली दे रही थी, लेकिन उसको महसूस होता था कि ये तसल्ली, ये ढारस भरे जुमले भी खोखले हो गए हैं। बाबा, मैं तो वैसे भी फुफ्फो के घर करना नहीं चाहती थी। बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अदन को आदत थी जब कोई इसकी जात की तजलील करता था उसी वक्त उसको अपने दिल से निकाल देती थी। शायद वो दिल से कुछ निकाल ही नहीं पाती थी। सबकी नजरों में बहादुर बनने वाली अदन अंदर से बहुत कमजोर थी। ख्वाब देखने की उम्र में जब आंखें तलखियां और दर्द देखने लग जाएं, तो आंखें ख्वाब नहीं दर्द बनने लगती हैं। अदन के दिल में सबके लिए नफरत बैठ गई। जब जब पापा को रोता देखा तब तब नफरत होती गई सबसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे प्यारा सा भांजा दिया है। थैंक यू अल्लाह ताला। अदन ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी। सब अदन को मुबारक देने लगे। मुबारक हो अदन, बहुत बहुत तुम हाला बन गई हो। शाहजैन का मैसेज आया, शुक्रिया बहुत बहुत। अदन बहुत खुश थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप अदन की बहन हैं? शाहजैन ने जरनिश को मैसेज किया। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अदन की बहन हूँ, पर तुम कौन हो और कैसे जानती हो अदन को? आपकी बहन मुझसे प्यार करती है और आप लोग एक बात बताओ, आप लोग उसको जीने क्यों नहीं देते? वो कहती है कि मेरी बहनें मेरा ख्याल नहीं रखती, सब ने मुझे नौकरों की तरह रखा है। उसने बताया कि उसकी मामा उससे प्यार नहीं करती, पापा उसके भी से प्यार नहीं करते। आप लोग क्यों कर रहे हैं उस पर जुल्म? शाहजैन बदले की आग में इतना आगे जा चुका था कि जो कहानी उसने और सना ने अदन को सुनाई थी वही कहानी उसके घर वालों को सुना दी। जरनश ने शाहजैन को ब्लॉक कर दिया। पापा बात सुने। जी जरनश बेटा। पापा यहाँ बैठे, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? पापा, मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया है। जरनश ने सारी बात पापा को बता दी। एक बार भी अदन से नहीं पूछा, ना बताया कि शाहजैन कौन है, इससे बात क्यों करती हो या नहीं करती। अगर जरनश अदन से पूछ लेती तो जिल्लत और रसवाई अदन का मुकद्दर कभी ना बनती। अदन की तो वो सगी बहन थी, बड़ी बहन थी। आग लगाने वाले ने आग लगाई थी, अपनों ने आग बुझाने के बजाय इस आग को मजीद हवा दी थी। हर दफा किस्मत अदन के साथ घिनौना मजाक करती थी, पता नहीं क्यों। वालिदैन जिस औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जान तक कुर्बान कर देने का दावा करते हैं, लेकिन बेएतबार होने में चंद सेकंड भी नहीं लगाते क्या? उन्हें हर वक्त इनकी नजरों के सामने रहने वाली औलाद के चाल चलन का पता नहीं होता या फिर अपने खून पर एतबार नहीं होता। अगर वालिदैन औलाद को दोस्त समझकर उनकी हर आसाइश देने के साथ साथ मोहब्बत और एतमाद भी बख्श दें तो माशरे में सुधार लाया जा सकता है। कहाँ है ये अदन? अदन अदन उसके पापा गुस्से से चिल्ला रहे थे। जी जी पापा, क्या हुआ? सब ठीक तो है, आप गुस्से में क्यों हैं? अदन नहीं जानती थी कि अपनों की ये बेएतबारी उसे ताउम्र जिल्लत और रुसवाई की दलदल में फेंकने वाली है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किसी लड़के को मैसेज किए, तुमने मेरी इज्जत तार तार कर दी। एक बार अपने बूढ़े बाप का सोच लेती तुम। और कौन सा जुल्म कर रहे हैं हम तुम पर? पापा ने गुस्से में पहली बार अदन पर हाथ उठाया। मैंने कौन सा जुल्म किया है तुम पर, बताओ तो जरा। मामा भी आ गई। तुम जैसी औलाद खुदा किसी को न दे, मर जाओ तुम। आप सब ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्यों ऐसे कर रहे हैं? शाहजैन ने मुझे मैसेज किया है अदन बीबी। शाहजैन? व्हाट? उसने तुम्हें क्यों मैसेज किया? देखा पापा, ये जानती है शाहजैन को।
बुलाओ अपने शाहजैन को और हम उससे तुम्हारा निकाह करवाते हैं। निकाह के बाद दोबारा हमारे घर ना आना तुम। पापा क्या हो गया है आपको? मर गया तुम्हारा बाप, बस खत्म। अदन के अंदर छिन से कुछ टूटा था। वक्त की सियाह आंधी सब कुछ बहा कर ले गई थी। अदन अपनी ही नजरों में गिर गई थी। उसका भी मान टूटा था, दिल टूटा था। वो भी सबको बताना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं किया। उसे उसकी इज्जत को यूं दो कौड़ी ना किया जाए, वो बेकसूर है। लेकिन बेएतबारी का तूफान सब कुछ बहा कर ले गया। वो कमजोर लड़की नाकाबिले एतबार हो गई थी। एक पल लगा था सब खत्म होने में, सब खत्म हो गया है। उसे उसके अपनों की बेएतबारी ने जिंदा लाश बना दिया। चीथड़ों में बटे मान की लकीरें उठाकर वो बाबा के रूम की तरफ चल दी थी कि बाबा एतबार करेंगे, उसकी बात सुनेंगे। लेकिन बाबा ने भी उसका मान तोड़ दिया था। आज अदन को सब ने तोड़ दिया था। बाबा गुस्से से बाहर चले गए। जरनिश, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी बहन होकर तुम ऐसा करोगी। कम से कम पूछ लेती कि लड़का कौन है, क्या इसने ऐसा क्यों किया है। अदन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो क्या करती, किससे कहती? हाँ तो मैं क्या करती? इस लड़के ने मुझे मैसेज किया था, तुमने इस पर भरोसा कर भी लिया कैसे? जरनिश, मैं तुम्हारी बहन थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। तुम इस यार की बातों में आ गई जिसे तुम जानती तक नहीं। अदन बाबा के रूम में आ गई। पापा की आंखें नम थी, जैसे वो रोए हों। बाबा प्लीज नहीं रोए, ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हटो साइड से। बाबा प्लीज। अदन ने बाबा के पांव पकड़ लिए। अब क्यों कर रही हो मेरी फिक्र तुम अदन? तब कहाँ थी ये फिक्र जब तुम उस लड़के से बातें करती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा, हमने क्या जुल्म किया है तुम पर? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की हमने, जो जो तुमने कहा हमने किया। तुम्हारी हर जिद पूरी की और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। एक नामहरम को जाकर कह दिया कि मेरे घर वाले मुझ पर जुल्म करते हैं। तुम मेरी बेटी नहीं हो। आज से जाओ, जहां जाना है बुलाओ इस लड़के को, तुम्हारा निकाह पढ़वा देते हैं। पापा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुने। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, वो झूठ बोल रहा है, उसने झूठ बोला है। बाबा मैं उसको जानती तक नहीं, पता नहीं कौन है। प्लीज बाबा। अदन, मैं कह रहा हूँ सब सच सच बताओ। पापा आप तो भरोसा करें ना अपनी अदन पर। मैं तो आपका मान हूँ, आपका गुरूर हूँ ना पापा प्लीज। हाथ में मिल गया सारा मान, सारा गुरूर। तुमने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा ये नंबर इस लड़के ने अपनी आईडी में दिया हुआ है, आप कॉल कर ले इसको। जरनश ने रूम में आकर नंबर दे दिया। जरनश बेटा बस, तुम जल्द ही यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। अदन का निकाह करवाते हैं इस लड़के के साथ, फिर हम ये घर भेज देंगे, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। बस एक बार वो लड़का आ जाए, अदन को भेज दूं, जाए ऐश करे इसके साथ। अदन के पापा ने शाहजैन का नंबर डायल किया।